let's begin with today's session. आज हम अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 5 ऑफ ऑसिलेशंस. यू कैन रेफर पेज नंबर 120. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 120 है, पेज नंबर 120 जहां पर हम ऑसिलेशंस पढ़ने वाले हैं. एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. A particle is shown here which is performing simple harmonic motion, and O is the mean position, M and N are the extreme positions here. Let's say that a particle at any point of t and at any point of time is at point P, having its displacement x as shown in the diagram. So at this position, what will be the velocity of the particle? What will be the velocity of this particle? Velocity v is equal to, it's on the positive direction, so let's say this velocity is given by omega into a square minus x square. This is the velocity, or that also can be, agar if it is starting from the mean position, x is equal to a sine of omega t plus phi, तो इसका डेरिवेटिव आएगा a omega cos of omega t plus phi. ये होगा उसका velocity. And once I know the velocity, I can write down the kinetic energy of the particle, the Ke. Kinetic energy of the particle is given by half mv square. तो बस मैं उसको square कर दूंगा. So what will be the kinetic energy? It will be half m. इसको square करेंगे तो ये आएगा a omega square, a square minus x square. This is the expression for the kinetic energy of the particle which is performing SHM. Okay, ये उसका kinetic energy है. Now काइनेटिक एनर्जी लिखने का और एक तरीका यहाँ पर हो सकता है बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस. इसको यूज करके भी लिख सकते हैं. also if I'll use this expression for kinetic energy, ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम यूज कर ले यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा बताइए. तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m इसका स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस phi. सही है, बराबर है क्या? बट वी ऑल्सो नो द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m. ऐसा था ना, ऐसा था कि नहीं था? So what will be k is equal to m omega square. So if I'll make this substitution, how it is going to change? Ke is equal to, I will substitute for m and omega square. इन दोनों के लिए अगर हम substitute कर दें तो ये बन जाएगा half k a square cos square of omega t plus phi, and I'll put it in the box. In fact, इस फॉर्मूले में भी मैं m और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k लिख सकता हूं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इज दिस ओके? समझ में आया सबको? ऑलराइट. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट नाउ अगेन. इसके बारे में बात करेंगे कि ये पार्टिकल इधर से इधर गया है. तो टेल मी, इफ दिस पार्टिकल इज एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन व्हिच आई हैव शोन हियर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स? What will be the direction of restoring force? Restoring force will always act towards the mean position. It will always act towards the mean position. है ना? ये है उसका mean position और restoring force उसको हमेशा mean position की तरफ ही act करेगा. So this is the restoring force. Is this clear to you all? समझ में आ गया? Isn't it? Now I know that this F, this is the force, and this F is equal to minus k into x. This F is equal to minus k into x. Is this okay? Alright. और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, if I want to show the displacement, इसको आगे थोड़ा सा और आगे डिस्प्लेस करना है, समझो के. I want to displace this little further. Let me say that I want to displace this little further. कितना? Very little. Say इतना. I want to displace it further by this much amount. I'll say ये जो डिस्प्लेसमेंट है, this is dx. ठीक है. Now what is the angle between these two? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. द एंगल बिटवीन देम इज एक्चुअली 180 डिग्री.
नो. ओके, कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM and we say that the force is the restoring force is in this direction and the displacement is in this direction. So can you comment on the amount of work done in this case? What will be the work done? We know that the work done, very small amount of work done. Small amount of work done is equal to dW, which is equal to F bar dot dx bar. W is equal to Fs. This is this dot product. So I'll say that this is nothing but F into dx into cosine of the angle between them, that is cos of 180 degree, and eventually this 180 degree cos of 180 degree is minus 1. So what we get there is that is equal to minus F into dx. But I already know that F is equal to minus kx, so this is minus of minus kx into dx. समझ में आ रहा है? बेसिकली हम पोजीशन O से P तक जाने के लिए या P से आगे जाने के लिए, P से थोड़ा सा आगे जाने के लिए क्या वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर फाइंडिंग आउट द वर्क डन हियर. सो द वर्क डन इज गिवन बाय दिस, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस kx into dx. This is the work done for a very small elemental displacement from this to this position P to say Q. इस पोजीशन में जाने के लिए this will be the वर्क डन. अब मुझे चाहिए एक्चुअली यहाँ से वहां तक जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, ये मुझे पता करना है. व्हाट इज द वर्क डन, या फिर O से P तक जाने के लिए, if I want to find out what is the work done for moving from O से P तक, तो मुझे टोटल वर्क यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए what I need to do is integration. I have to integrate it. I'll say it is integration, क्योंकि O से P तक का जो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है, whatever displacement that we have from O to P, whatever displacement that we have from O to P, we can divide this displacement into छोटे 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 हिस्सों में उसको मैं ये कर सकता हूँ. and each displacement here is dx, isn't it? और सबका जो इफेक्ट आएगा वो कंपाइल करूंगा या इंटीग्रेट कर दूंगा. so this is going from k into x into dx, and this x is going from x is equal to 0 to x is equal to x. is that clear? and likewise if I integrate this now, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर ले अभी, if I integrate this now, so that will become k is a constant, x raised to 1 is x square upon 2. This is going from x is equal to 0 to x is equal to x. Limits, x is equal to 0 होगा at O and x is equal to x होगा at P. This is at O and this is at P. So from O से P तक जो भी कुछ वर्क डन होगा, it is given by this, that is equal to half k into x square. But I know that k is equal to m omega square, so this will become half m omega square into x square. Well, this is the work done, and this work done is stored there in the form of potential energy. So we call this as the potential energy. ये potential energy है. Whatever work that is done in this displacement is stored there in the form of potential energy. So we say this is the expression for potential energy. Is this clear to you all? ये है expression for kinetic energy और ये है expression for potential energy. Well, I can find out what will be the total energy if I know both these energies. इन दोनों को अगर मैं combine कर दूं या club कर दूं, if I combine both these, इन दोनों को अगर जैसे मैं combine कर लूँगा, इनको add अगर कर लेता हूँ, तो that will give me the total energy which is equal to kinetic energy plus potential energy. So what will be the total energy? The total energy is given by half k a square. Basically I'll use this formula, ऊपर का जो है वो वाला फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा, ये वाला kinetic energy, हाफ k स्क्वायर, हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा kinetic एनर्जी का. एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर बोलिए, या फिर इसको भी k स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, k स्क्वायर k x स्क्वायर. आई थिंक आई विल टेक हाफ k कॉमन, k बाई 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसिल. So what is the total energy? The total energy is given by half k a square, or that is half
m omega square a square. Is that clear? Is that okay? ठीक है. So this is the expression for the total energy. ये है total energy का expression. This is the expression for total energy. Alright? ठीक है. अब टोटल एनर्जी को मैं अलग फॉर्म में भी लिख सकता हूं. आई मीन यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन. उसके लिए अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 2 2 4. तो कुल मिलाकर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज टोटल एनर्जी इज 2 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इंटू एम n square a square. Well, from this can we just close the door please? तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा टोटल एनर्जी is directly proportional to the mass. It is also directly proportional to frequency square and directly proportional to amplitude का square. Is this clear to all? अगर मुझे उसको and it is inversely proportional to time period क्योंकि 2 pi also equal to 2 pi by t ना. Okay, so this is the expression that we get there. Any doubts about that? इसका पोजीशन अगर हम देखें अलग अलग पोजीशन में उसके काइनेटिक एनर्जी का, अगर हम पोजीशन वाइज देखें तो ये डायग्राम हमें बताता है द पोजीशन वाइज काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा. व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एट व्हाट टाइम. स्पेशल केसेस अगर हम यहाँ पर देखें, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द स्पेशल केसेस हियर. ग्राफ है यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं. सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस मतलब कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ एट द मेन पोजीशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द एक्सप्रेशंस एट द मेन पोजीशन एंड एट द एक्सट्रीम पोजीशन. चलिए बात करते हैं यहाँ पे. दिस इज द मेन पोजीशन, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0. दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन 1 एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन 2. ठीक है ना. तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. ये रहा ये वाला एक्सप्रेशन. इन शॉर्ट अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो वो वाले एक्सप्रेशंस मैं लिख सकता हूँ. आई कैन राइट डाउन दोज एक्सप्रेशंस हियर. So let's talk about the special cases here. The potential energy is given by half m omega square x square. Kinetic energy is given by half m omega square a square minus x square, and the total energy is given by half m omega square a square. Special cases when x is equal to 0 क्या हो जाएगा बताइए. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू x के जगह पर 0 डाल दो तो ये 0 आएगा. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, x के जगह पर 0, सो दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. एंड टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. टोटल एनर्जी अगर देखा जाए तो दिस इज कांस्टेंट, वो x पर डिपेंड नहीं करता, इसमें x है ही नहीं. ठीक है. दूसरा, अगर एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस a लिखते हैं, प्लस a लिखो या माइनस a लिखो, और x इज इक्वल टू माइनस a, तो क्या हो जाएगा बताइए. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी x के जगह पर प्लस a या माइनस a लिखोगे तो ये आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, x के जगह पर प्लस और माइनस a तो ये 0 बन जाएगा. काइनेटिक एनर्जी 0 m omega square into 0. And what will be the total energy? The total energy is always half m omega square a square. वो तो constant ही रहेगा. So if I want to predict about the graph of this, इसका ग्राफ अगर मुझे चाहिए तो वो ग्राफ पोजीशन वाइज ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा. This is the graph of energy of SHM.
ठीक है, इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, दिस ये जो है ये वाला, दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, समझे। और ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया। एंड आई वुड से दिस इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। इज दैट क्लियर? समझ में? ग्रीन कलर का जो ऊपर में दिखा है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी देखिए मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, आई से दिस इज इक्वल टू के ई मैक्स, और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, विल कॉल दिस इज पीई मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इज दैट अंडरस्टूड? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया आपको? ऑलराइट। और यहां पर जो हम दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, these are the points at which the kinetic energy is equal to potential energy. Okay, did you understand that? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। सो इस तरह से ये दोनों ग्राफ्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इज दिस ओके? सो जस्ट कंसिडर दिस ग्राफ्स नाउ, एनर्जी के बारे में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये सिंपल सा ग्राफ है, वी ऑलरेडी नो दिस ग्राफ्स, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ है, बराबर है ना। दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ जो साइनसॉइडल होता है। उसी तरह से दूसरा एक ग्राफ यहाँ पर हो सकता है जो हमें ऑलरेडी पता है, वो कौन सा होता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी वाला ग्राफ हो सकता है ना। यू कैन हैव अ ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसी प्रकार का ग्राफ होता है वो, ऐसे ही ग्राफ होगा, लेकिन ओनली द थिंग इज दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट ना। तो ऐसा जाके तो ऐसा यहाँ पर वो साइकिल पूरा करेगा। तो योर टी इज कंप्लीटेड ओवर हियर। व्हाट इज दिस ग्राफ? दिस ग्राफ इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन। फिर इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो वी ऑलरेडी नो दीज थ्री ग्राफ्स, करेक्ट। What is important for us here is to consider these three graphs, 1, 2 और 3. These are the graphs of energy versus time. इसके ऊपर हमने जो देखा ना वो ग्राफ कौन सा था, पोजीशन और एनर्जी का था, एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। Did you understand? But this is energy versus time. We are talking about energy versus time. सो ये है के ए स्क्वायर, मतलब कौन सा है, यू जीरो प्लस हाफ के ए स्क्वायर। ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, और ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय पीई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन एम ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो रिटन एज के, सो हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसा इन्होंने ये वाला ग्राफ लिया है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज यू जीरो? यू जीरो इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा ना यहाँ पे, इट विल हैव बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। अगर यहाँ पर वो कर रहा है एसएचएम, इफ इट इज मूविंग, तो इस पोजीशन, ग्राउंड से इस पोजीशन पर होने के कारण उसके पास कुछ खुद का पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। उसी प्रकार ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
या तो फिर वेलोसिटी ये वाला एक्सप्रेशन अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे हाफ एम वी स्क्वायर, तो विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ. नाउ एंड दिस इज द ग्राफ, द लास्ट ग्राफ इज द ग्राफ फॉर द टोटल एनर्जी. द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, और वो हमने देखा है दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये है उसका एक्सप्रेशन. दीज आर द एक्सप्रेशंस. व्हाट इज द पिक्यूलियर पार्ट ऑफ these ग्राफ्स is, I would like to highlight this part here is, देखिए, and we'll accept these graphs as they are, like उसको हम proof शो नहीं करते बैठेंगे. But what we see here is यहाँ पर इसका एक टाइम पीरियड पूरा हो रहा है. इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम पीरियड अगर हम देखें, if I look at the time period of the displacement, तो डिस्प्लेसमेंट का एक यहाँ पे let's say this is the time, वो एक साइकिल पूरा हो रहा है, और उस एक साइकिल के दौरान यहाँ पर इसके कितने साइकिल्स हो रहे हैं, प्लीज चेक. ये देखिए इस प्रकार है कुछ वो अप्रोक्सीमेटली. देखिए, सो दिस इज वन साइकिल, इसका एक वन साइकिल, इसका भी वन साइकिल. लेकिन व्हाट आई सी हियर इज, ये यहां से लेके देखिए, गौर से देखिए, इट्स, इफ आई टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, तो वो यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल पूरा कर रहा है विच इज इन t/2, एंड इन रिमेनिंग t/2 इट्स कंप्लीटिंग बाय वन मोर साइकिल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इज दिस ओके? Will I repeat here? Will I repeat here? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक it is completing one cycle which is in time period of t/2, isn't it? And in the next half cycle it is completing one more cycle, यहाँ से लेकर यहाँ तक. So इसका जब एक साइकिल हो रहा है तो इसके दो साइकिल्स हो रहे हैं. Are you understanding that? सेम इज हैपनिंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. वो यहां से लेकर यहां तक उसका एक साइकिल पूरा हो रहा है. दिस इज स्टिल t/2, और t/2 के बाद यहां से आगे फिर से वो उसका और एक साइकिल पूरा कर रहा है. दिस इज स्टिल t. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? यहां से कंक्लूड कर सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ के ई एंड पी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द ग्राफ ऑफ एक्स या वी या एक्सेलरेशन. इसका जो ग्राफ है इससे इसका फ्रीक्वेंसी डबल होता है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? क्या ये समझ में आ गया आपको? एक ही टाइम पीरियड में उसके दो बार हो रहे हैं ना साइकिल्स. देयर आर टू साइकिल्स दैट इट इज कंप्लीटिंग. और इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, आई विल से टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड ऑफ एक्स, वी और एक्सेलरेशन, इसका टाइम पीरियड t होता है. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड कितना होता है? t/2. ठीक है? और इसका फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है विच इज इक्वल टू 2π/t, तो इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2πt/2, दैट विल बी 2 times 2π/t, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ का ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 times ओमेगा. डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? समझ में आ गया आपको? दिस इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. इसके लिए मैं वो यहाँ से DC पांडे से उठा के लिख. We are supposed to know this because of JEE NEET CET. उसके लिए there are some questions which are going to come on this. ठीक है? So that is about this thing. I think चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए the next thing that we consider is called a simple pendulum. An ideal, there are two definitions which are given here. पहला है आइडियल सिंपल पेंडुलम. फर्स्ट इज आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड द सेकंड इज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. आइडियल में क्या होता है?
a heavy particle suspended by a massless, inextensible, flexible string from the rigid support. Heavy particle, कोई particle heavy हो सकता है क्या? If it has to be heavy, it has to have some volume, isn't it? A heavy particle, तो particle यहाँ पर लिया हुआ है, इस वजह से वो ideal हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, is a small heavy sphere, तो उन्होंने particle के जगह पर sphere ले लिया, that is called as bob. ठीक है, so heavy particle के जगह पर sphere आ गया, तो that has become practical simple pendulum. Suspended by a massless, कोई भी चीज होगी उसका मास तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, छोड़ा होगा, कम होगा, तो मासलेस, इसलिए मासलेस है तो आइडियल है. एंड इफ इट इज लाइट तो वो प्रैक्टिकल हो गया. समझ में आ गई बात? इनएक्सटेंसिबल, हाँ दोनों भी इनएक्सटेंसिबल होने चाहिए. फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. तो दीज आर सम ऑफ द, सो व्हाट आर द थिंग्स विच आर मेकिंग हिम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल? एक तो वो पार्टिकल नहीं हो सकता, दूसरा मासलेस नहीं, ठीक है. इनएक्सटेंसिबल, हाँ हो सकता है इनएक्सटेंसिबल. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो दैट इज द, और वो कई बार डेफिनेशन पूछते हैं यार, ये डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम, डिफाइन प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, या डिफाइन ओनली सिंपल पेंडुलम. तो दोनों में से एक, अगर सिर्फ सिंपल पेंडुलम पूछा तो आप इसमें से ऊपर वाला डेफिनेशन आइडियल वाला दे दो, नहीं तो प्रैक्टिकल वाला दे दो, कोई भी एक डेफिनेशन दे दो, ठीक है ना. तो ये है वो सिंपल पेंडुलम, दिस इज द मीन पोजीशन, और ये है एक्सट्रीम पोजीशन. वो ऐसे वहां पे टंगा दिया है एंड इट इज ऑसिलेटिंग. ठीक है. आई वांट टू फाइंड आउट, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूं, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ कर लूं, क्योंकि रेडीमेड ड्रॉ डायग्राम अगर मैं करता हूं तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आई एम ड्रॉइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस. ठीक है. ये यहाँ से ऐसे अटका दिया है एंड इट्स मेकिंग एंगल थीटा हियर. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस. व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस, बताइए. पहले है उसका वेट, खुद का सेल्फ वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस, राइट. और उसके बाद आई विल रिजॉल्व दिस, इसे मैं रिजॉल्व करूंगा in this direction and in this direction. ठीक है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा. and what about this? This is mg cos theta and this is mg sin theta. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है. सो अच्छा, अब इसके अलावा देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. देयर विल बी द टेंशन ना, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. समझ में आ गई बात? ओके. सो ये जो है, ये मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया. समझ में आ गया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? ओके. सो इसमें से कौन सा जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा? Which force is going to act like a restoring force? I think it is this force. Yeah, so this is the restoring force because it is directed towards the mean position. That's called as the restoring force, isn't it? So what I will say here as for restoring force, ये derivation है. Restoring force F is equal to mg sin theta. Now theta is small and measured in radian, and therefore sin theta is approximately equal to theta. तो ये हो जाएगा mg theta. सही है? सॉरी, हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा. मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस तरफ, अगर डिस्प्लेसमेंट x है
तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट होगा. या सो आई लेट मी जस्ट पुट इट एज माइनस. इफ आई एम कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑल्सो, तो ये हो जाएगा माइनस. एनी डाउट सो फार? इज दिस क्लियर? नाउ इफ आई टॉक अबाउट एस इज इक्वल टू आर थीटा, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूँ द आर्क लेंथ एंड ऑल, अगर मैं आर्क लेंथ एंड ऑल कंसिडर कर दूँ, मतलब समथिंग लाइक दिस. इफ आई से दिस इज एस, this is r and this is theta. if I'll consider s is equal to r theta, तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला, उसे हम x बोल रहे हैं. सो s के जगह पर x आएगा. r is the radius, रेडियस के जगह पर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आएगा, and this is angle theta. is this okay? so in place of theta what can I write? theta is equal to x upon L. so I'll substitute here. this will become this force, and this force is, by the way, F is equal to ma हो जाएगा ना. so this is nothing but F is equal to minus mg into x upon L. is that clear? समझ में आ गया? now I would say F is equal to ma is equal to minus mg x upon L. so this m gets cancelled. so what do we get there? this will give me acceleration. A is the acceleration, is equal to minus g upon L times x, and this x is the displacement. this x is the displacement. सही है. अब हमें जो फॉर्मूला पता है SHM का, SHM का फॉर्मूला बोलता है कि भाई एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ये फॉर्मूला पता है ना आपको? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, सो उसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ. तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? जी अपॉन एल. राइट ना? सो यहां से आई विल से ओमेगा square is equal to g upon L, which implies omega is equal to square root of g upon L, which means that omega is 2 pi by t is equal to square root of g upon L. और यहाँ से मुझे मिल जाएगा, if I rearrange, time period of simple pendulum is 2 pi square root of L upon g. So this is the expression for the time period of simple pendulum. This is the expression for टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इसका अगर रेसिप्रोकल हम लिखे, दिस इज द डेरिवेशन, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है. इफ आई वांट टू राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है. अब इसमें अगर कोई सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, इफ time period of a simple pendulum is 2 seconds, मतलब time required to complete one oscillation is 2 seconds, then that simple pendulum is called as seconds pendulum. क्या कहते हैं इसको? seconds pendulum. seconds pendulum जिसका टाइम पीरियड होता है 2 seconds, जो कि यहाँ पर अपने को टेक्स्ट बुक में दिया गया है. seconds pendulum ये रहा, 2 seconds is the time period. अगर टाइम पीरियड उसका 2 सेकेंड्स है तो वी कॉल इट एज द सेकेंड्स पेंडुलम. इज दिस ओके? ठीक है. अच्छा, इसी तरह से द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट अपॉन इज तो यहां पर दे मे आस्क यू कोनिकल पेंडुलम जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, एंड सिंपल पेंडुलम. I'll go for the next part, that is called as angular SHM and its differential equation. Angular SHM and its differential equation. देखिए यहाँ पे ये एक डिस्क है, मेटालिक डिस्क. Let's say this is a metallic disc and this disc is hanging. ये जो डिस्क है वो हैंग हो रहा है. It's hanging like this. ठीक है. और इस यहाँ पर एक मेटल रॉड है,
तो अगर इस डिस्क को हमने ऐसे घुमा दिया तो इट विल परफॉर्म द ऑसिलेशंस इन दिस मैनर, इस तरह के ऑसिलेशंस वो यहाँ पे सेटअप करेगा. नाउ दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज टॉर्शनल ऑसिलेशंस और एंगुलर ऑसिलेशंस. टॉर्शनल ऑसिलेशंस और एंगुलर ऑसिलेशंस. आपको एक टेबल दिया था मैंने लीनियर मोशन का और एंगुलर का, सर्कुलर का, उसको मैं बोलता हूं सर्कुलर मोशन. वो टेबल याद है आपको, जिसे हम रोटेशनल भी कहते हैं या जिसे हम सर्कुलर एंगुलर बोलेंगे. आई कॉल दिस एज एंगुलर. डू यू रिमेंबर दिस टेबल? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, डू यू रिमेंबर दिस टेबल? लीनियर, तो उसी प्रकार का टेबल यहाँ पर कंटिन्यू होगा. द सेम टेबल गेट्स कंटिन्यूड हियर. लीनियर एसएचएम, और यहाँ पर मैं सर्कुलर नहीं बोलूंगा या रोटेशनल भी नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा एंगुलर एसएचएम. ठीक है. लीनियर एसएचएम के लिए अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या माइनस x, तो इधर क्या लिखोगे आप? फोर्स के जगह पर क्या होता है? फोर्स के जगह पर क्या होता है सर्कुलर या एंगुलर में? आपने वो टेबल लिखा है, याद है? तो बताओ ना, फोर्स के जगह पर क्या होता है? टॉर्क होता है. टॉर्क, देखो उसको याद आ गया. फोर्स के जगह पर टॉर्क होता है. टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इधर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. याद नहीं आपको ये? ओमेगा. आई होप नाउ यू सी द टेबल. आई होप नाउ यू सी द टेबल. कैन यू सी? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा उसको. इट्स ओके. टेबल नहीं दिखाई देगा. तो टॉर्क के जगह पर यहाँ पर फोर्स के जगह पर टॉर्क होगा और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. तो यहाँ पर आता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो इधर आता है टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा. समझे? ओके. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है? व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. अब वो लीनियर एसएचएम क्या होगा और एंगुलर एसएचएम क्या होगा? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, बोलिए बोलिए. चलिए, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. मैं इसको डिराइव भी कर लेता हूँ. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स. ये डिफरेंशियल इक्वेशन. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. इधर ध्यान दो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझे? तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. करेक्ट? करेक्ट ना? ये बनेगा डी टू थीटा. ये देखिए एक्सेलरेशन को हम डी थीटा बाई डी टी ऐसे लिखते हैं. ऐसा लिखा था हमने प्रीवियस सर्कुलर मोशन में, लिखा था हमने. सो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा. समझे क्या? नो व्हाट इज ओमेगा हियर? ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज सी अपॉन आई. अंडरस्टूड? and therefore what do I get there? Therefore this will give me that ये होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर मैं बोलूँगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, और यहाँ का ओमेगा स्क्वायर होगा सी अपॉन आई. वेल दैट इज द एंगुलर एसएचएम. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ठीक है. वेल यहाँ पर इन्होंने एंगुलर एसएचएम के लिए कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वो देखिए क्या डेफिनेशन. एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज, angular SHM is defined as the oscillatory motion
of a body in which the torque for the angular acceleration is directly proportional to angular displacement. यहां पर अगर मैं आपको पूछूं इसका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज डायरेक्टली proportional to angular displacement. This is torque, this is angular displacement, force and displacement. Is that clear? What am I going to call this? Torque, and this is angular displacement. अच्छा, इस अवस्था में मैं आपको बता दूं कि अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो व्हाट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी अपॉन आई, but that is equal to 2 by t. So what is the time period here? I can write down the time period. The time period is equal to 2 pi square root of I upon c. What is I, by the way? I क्या होता है? I is the moment of inertia and c is the c. What is k here? Spring constant. Spring constant. तो यहाँ पर what will be c? C is called as the torsional constant of the spring. Torsional constant. Torsion मतलब ऐसे twist होना, twist होना. This is called as torsional constant. Torsional constant. और यहाँ पर k जो था वो force constant था ना, it was a force constant या spring constant, ऐसा भी बोल सकते हैं उसको. Is that clear to all? ठीक है. So I think I'll switch over to the MCQs now. ठीक है, I'll switch over to MCQs. Let's begin. We'll need a calci for this. Question number 48 NCERT. देखिए क्या दिया है यहाँ पे. Here the string of mass 3 kg. The string of mass. Please check here. Question number 48. String of mass 3 kg. Now before I go further, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा. Before I go further, कि अगर कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ा या इलास्टिक रबर, and if I make it to vibrate, will it vibrate? प्लग करने से उसके ऊपर, isn't it? तो यहाँ पर एक्चुअली जो स्ट्रिंग होता है, it can be the string, it can be the spring. So उसके ऊपर जो वेव तैयार हो जाता है, उस वेव का वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव, speed of wave on stretched spring, on stretched string, it is given by v is equal to square root of t upon mu. What is t? What is mu? देखते हैं यहाँ पे t क्या होता है, mu क्या होता है. Let's consider this. तो t is the tension in the string, tension in the string, and mu is mass per unit length of the string, mass per unit length of string. स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ होगा, मतलब म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. समझ में आ गया? समझो कि ये कुछ इस प्रकार का है कि भाई यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक पुली लगाया हुआ है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है. लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग. ऐसा स्ट्रिंग है समझो, ठीक है. और यहाँ पर कुछ मास लटका दिया है. दिस मास इज कैपिटल एम. स्ट्रिंग जो है, स्ट्रेच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इसका मास है एम और उसका लेंथ है एल. ओके. सो इन दिस केस द वेलोसिटी, अगर इसको अगर प्लग किया हमने, तो प्लग करने की वजह से इसके ऊपर वाइब्रेशंस हो जाएंगे एंड द वेव इज सेट अप एंड दिस वेव इज गोइंग टू ट्रैवल विद सर्टेन वेलोसिटी. ये वेव कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, ठीक है. वी आर गोइंग टू सी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. लेकिन अभी फिलहाल आपको ये वाला फॉर्मूला मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है. सेकंड थिंग, सो यही फॉर्मूला यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा. लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन की बात करें. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ.
We have to apply this in the question. A string of mass, string का mass दिया है, capital M is the mass which is attached here and M is small m is the string का mass. The string of mass 3 kg, so it is the small m 3 kg is under tension of 400 न्यूटन. ये 400 न्यूटन मतलब ये डायरेक्ट टेंशन है. यहाँ पर टेंशन क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू जी, लेकिन उन्होंने टेंशन यहाँ पर रेडीमेड दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 400 न्यूटन. इज दैट अंडरस्टूड? The length of the stretched string is 25 centimeter. Okay. If the transverse jerk यहाँ पर इसको jerk किया तो it will set up it in the vibrations. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? यहाँ से वो जो disturbance है, that disturbance will start traveling along this. समझ में आ गया? With this velocity. So we are supposed to find out कि उसको इधर से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. First of all, I'll have to find out what is the velocity. Velocity find out करने के लिए मुझे mu find out करना पड़ेगा. What will be mu is equal to? It is mass upon length. Correct? Mass is 3 kg and length is 25. So 25 upon 100 मीटर हो जाएगा ना ये. 25 upon 100 meter. Is that understood? So this will be actually 300 upon 25 or 25 forza, and this is actually 12. This will be actually 12 ना. कितना आएगा ये? 25 into 10 raised to minus 2. Yeah, 12 kg per meter. समझे? 12 kg per meter. Alright, this is mu. And what is the velocity? Velocity is equal to square root of t upon mu. What is t का value? 400. What is mu का value? 12. तो कितना बनेगा जी ये? We have to do this with the help of calci, I guess. 400 का square root आएगा 20, या तो फिर 4 3 4 1 0 0, तो इसका square root आएगा 10 upon root 3. 10 upon root 3. So it will be 10 upon 1.73. Calci please. 1.732. Calci please. तो या तो फिर इसको मैं लिखना पड़ेगा मुझे 100 upon 17.32. क्या आएगा प्लीज बताइए. This is the velocity and velocity is equal to distance upon time. What is the distance here? The distance is 12 centimeter. 12 centimeter मतलब 0.25 meter divided by time taken. तो ये कितना आएगा? What is the velocity there? Please tell me. Velocity बताइए ना. 5.77. 5.77 ना. 5.77. So what will be the time period here? It will be 0.25 upon 5.77. Cancel. कितना आएगा ये? 0.25 upon 5.77. So that will give me point. नहीं 0.03 ना. हाँ, 0.043 seconds, and that's the answer. 0.043 seconds. A is the answer there. A is the answer. Is this okay? A is the answer. समझे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question now. Question number 49. क्या दिया है यहाँ पे? A natural length of the spring is 40 centimeter. Natural length of the spring is 40 centimeter and its spring constant is 4000 Newton per meter. Newton per meter. Unstretched length. Unstretched length. मतलब उसको stretch नहीं किया है. So that is 40 centimeter. And spring constant is 4000 Newton per meter. A mass of
20 kg is hung from the it. The extension produced in the spring is, take G is equal to 9.8 meter per second. What is the extension produced? Extension पूछा है उन्होंने. क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं? अब देखिए ऐसा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन या पर यूनिट एक्सटेंशन. अब ये लेंथ, ये स्प्रिंग कंप्रेशन वाला भी हो सकता है या इलोंगेशन वाला भी हो सकता है. सो इसको मैं बोलूंगा फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन. फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन, समझे क्या? It is force per unit deformation. So I'll simply say that K is equal. Now what is the force acting? अगर ये एक स्प्रिंग है और इसको ये मास टंगा दिया है, तो what is the force acting on this? F is equal to weight, that is equal to mg. Yes or no? So I'll say this is m into g per unit deformation. अब इतना फोर्स है और उसका एक्सटेंशन पूछा है. I'll call this as x. So x. Now I want to find out what is k. X is equal to m कितना है 20, g is 9.8, उसको मैं 10 ले लूंगा, and k is 4000. ओके, सो यहाँ से मुझे 1 2 1 2 2 2 जा, सो 1/20 और 0.5/10 और 0.05 मीटर, that is equal to 5 centimeter. So the answer is 5 centimeter, 4.9 centimeter. A is the answer. यहाँ पर ये वाला मैंने यूज भी नहीं किया. Did you? Extra data. Is that clear to you all? अगला question. The next question I go for. Can you all hear me? Online people? The next question I'll go for. Yes, sir. Question number 50. No. क्वेश्चन नंबर 50. देखिए एनर्जी के बारे में कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस है जो मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा सिर्फ यहाँ पे. हा, पण मग ते तुम्हाला नोट्स मध्ये नसतं मिळालं ना. यू वुड नॉट हैव गॉट इट इन द नोट्स. चलिए क्या दिया है देखिए यहाँ पे. इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? This is the graph that we have seen for extreme position and all. एक्सट्रीम पोजीशन पे ये काइनेटिक एनर्जी है ना. काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. दैट्स इट. काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड दैट्स द आंसर. ये बहुत सिली क्वेश्चंस है, आई मीन बहुत इजी क्वेश्चंस है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर the next question I'll go for. The total energy of a simple harmonic oscillator is proportional to. टोटल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला देखा था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, but omega is equal to 2 pi n na. So if I'll substitute, this will become half m 4 pi square n square into a square, or 2 pi square m n square a square. Okay, so it is total energy is proportional to, क्या है? एम्पलीट्यूड है या स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है? फ्रीक्वेंसी है या स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी है? समझे क्या? वेलोसिटी होगा या हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, अगर आपको पता है. सो व्हाट इज आंसर हियर? बी. समझे ना? अगला क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर. अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle
of mass m executing SHM with amplitude a and angular frequency omega. The average value, this is interesting, average value. Now before I proceed further, आपको मैं कुछ नोट बताना चाहूँगा and that is about the sine and cosine function. आप मुझे ये बताइए कि how is the graph of sine function and cosine function? Sine function और cosine function का ग्राफ कैसे होता है? If I'll ask you that the graph is somewhat like this, I hope you know this. ये है sine function का ग्राफ over the complete cycle, whereas cosine function का ग्राफ अगर मैं आपको पूछूं, it is something like this. This is over complete cycle. ये cycle पूरा होता है यहाँ पे. Yes or no? So this is the graph of sin theta and this is the graph of cos theta. सही है? ठीक है. Now here ये पॉजिटिव एरिया है और ये निगेटिव एरिया है. यहाँ पर पॉजिटिव एरिया, ये निगेटिव एरिया और ये पॉजिटिव एरिया. करेक्ट? करेक्ट है ना? दिस एरिया इज अबव दिस टी एक्सिस, टाइम एक्सिस, तो ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. करेक्ट ना? नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन over a complete cycle, over a complete cycle, average value of sine or cosine function over a complete cycle. If I want to find out this, तो ये पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया इक्वल होते हैं और दे कैंसिल ईच अदर. यहाँ के दो पॉजिटिव एरियाज और एक निगेटिव एरिया, दे कैंसिल ईच अदर. सो इसका एवरेज साइकिल के ऊपर इसका वैल्यू होता है 0. Did you understand what I said here? Did you understand what I said here? Average value of sin theta, sine और cosine function over the complete cycle 0 होता है. कुछ समझ में आ गया इसका मतलब क्या आ गया? ठीक है. तो it means that I can write it as integration of sin x dx या sin omega t अगर मैं इसको लिखूं. If I write it as sin of omega t, integration of sin of omega t with respect to time t, and time is going from t is equal to 0 to t is equal to complete t. इसको आप sin ले लीजिएगा या cosine ले लीजिएगा, but this is definitely going to become 0. Is this clear to you all? समझ में आ गया? ये उसका मतलब हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को यूज करता है ये. अब देखते हैं यहाँ पर पूछा क्या है. दे से क्वेश्चन नंबर 52 कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग SHM विद पीरियड a एम्पलीट्यूड ओमेगा, द एवरेज वैल्यू पूछा क्या है. देखिए उन्होंने, दे आर आस्किंग द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ओवर द पीरियड इज. एवरेज वैल्यू पूछा है उन्होंने, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कोई भी आप एक ले लीजिएगा. x इज इक्वल टू, आई विल से कंसिडर a साइन ऑफ ओमेगा t. लेट अस कंसिडर a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5. अगर आपको लगता है कि भाई साइन ही क्यों लेना है, कोई नहीं, कॉस भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेट कंसिडर this is the displacement, then velocity will be equal to v is equal to minus a omega, cos of bracket का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट, इसलिए वो माइनस, एंड साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, कुछ इस प्रकार आएगा. एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस? इट विल बी गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो कुल मिलाकर आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. आई होप यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला. यस और नो? ये फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी पता है आपको, है ना? इजंट इट? हाफ m.
अगर मैं यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करूं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर मैं ये वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आई हैव टू स्क्वायर दिस ना, ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस चला जाएगा, सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, क्या आएगा ये साइन स्क्वायर, माइनस नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. इज दिस क्लियर टू ऑल? This will be the kinetic energy. And what will be the potential energy? Potential energy U is equal to half m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अभी अभी हमने लिखा था ना, तो x के लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. Is that clear? This is kinetic energy and this is potential energy which is a function of time t. Kinetic energy, potential energy which is a function of time t. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. Now I want average value over the complete cycle. Average value over the complete cycle. Over the complete cycle. I want to find out what is average value over the complete cycle. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I would say the average value over the complete cycle, I'll denote it like this, KE, and it is nothing but integration of KE into dt, which is going from t is equal to 0 to t is equal to capital T upon capital T. Please understand this. ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर द कंप्लीट साइकिल. मोबाइल रख दो अंदर. हाँ, सिमिलरली एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर द कंप्लीट साइकिल इज डिनोटेड लाइक दिस. ये सब नया है आपके लिए, इसी वजह से ये क्वेश्चन स्टार बन रहा है. इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई इंटू डी टी वेयर टी इज गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. ये इंटीग्रेशन मुझे करने पड़ेंगे अब. I'll have to do this integration. So what is that equal to? This is 1 upon t integration t is going from 0 to capital T. काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ये सब लिखिए, क्या बनेगा, ये हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन टी इज गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी. पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर आएगा हाफ m omega square a square cos square of omega t plus 5 into dt. Is this clear? इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है वो सब बाहर आएगा. What all is constant here? ये सब कांस्टेंट है, देखिए ये सब कांस्टेंट है, ये भी सब कुछ कांस्टेंट है, करेक्ट ना, isn't it? तो I'll just take it out. तो ये बन जाएगा m a square omega square upon 2t integration going from 0 to capital T, and this is sine square of omega t plus 5 into dt, और ये बन जाएगा m omega square a square upon 2t going from 0 to capital T cos square of omega t plus 5 into dt. ओके, अब एक फॉर्मूला यूज करना है मुझे. व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. आई होप यू नो दिस. आई सेड आई होप यू नो दिस. ठीक है ना. तो यहां पर कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. I'll multiply it by 2 and divide it by 2. तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये है थीटा, दिस इज थीटा ना, तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा और इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा बताइए. दिस विल बिकम m a square omega square upon 4t इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल T 2 cos 2 sin square थीटा, ये आएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा t प्लस 5, समझे, इंटू डी टी, और यह आएगा m ओमेगा स्क्वायर
upon 4t, integration going from 0 to t, 1 plus cos of 2 times omega t plus phi, right, into dt. Is this clear? Any doubts about that? अब हमने अभी अभी देखा है कि ये है कोसाइन फंक्शन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 to 2t जा रहा है ना ये. सो व्हाट शैल आई से हियर, इट्स एवरेज. अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो ये आंसर 0 आएगा, और ये भी कोसाइन फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? इसका रीजन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं. साइन और कोसाइन फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड t इज गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, तो इसमें इसका वैल्यू 0 आएगा. आप इसको डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हो. मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम जब इंटीग्रेशन में उस लेवल पे जाएंगे तब. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? अगर चाहिए तो हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे. चलाए, आई मीन कर सकते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस 2 phi इस तरह से बनेगा dt. नाउ दिस इज लुकिंग लाइक इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b. cos ऑफ ax प्लस b, इसका आंसर क्या होता है जी? dx इज 1 अपॉन a साइन ऑफ ax प्लस b. सही है, तो इसका आंसर आएगा, दिस इज t एंड कोएफिशिएंट ऑफ t इज 2 ओमेगा, सो दिस इज 1 अपॉन 2 ओमेगा. आंसर आएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा t प्लस 2 phi है, एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल T. सही है, ठीक है. और आगे देखिए अब ये क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 ओमेगा. पहले मुझे ओमेगा के जगह पर t लिखना पड़ेगा, सॉरी जगह पर कैपिटल T लिखना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल T प्लस phi, सॉरी 2 phi. ये पहला वाला ब्रैकेट आएगा, माइनस दूसरे ब्रैकेट में t के जगह पर ये लिख दीजिएगा. सो 0 लिखेंगे तो ये आएगा 2 phi, साइन ऑफ 2 phi. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ रहा है? अब 2 ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाय t, इसमें से t कैंसल, तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, दिस विल बिकम साइन ऑफ 4 पाई प्लस 2 phi माइनस साइन ऑफ 2 phi. इसका मतलब समझाइए क्या हो गया. ये कोई एंगल है 2 phi, दिस इज 2 phi. 4 पाई प्लस 2 phi क्या होगा, एक जो 4 पाई एंड 2 phi, phi दिस इज 2 phi. अब 4 पाई प्लस 2 phi मतलब यहां से 1 phi 2 phi 4 phi and plus 2 pi. Did you understand? So is it the same position? So same trigonometric ratios and this will be 0. तो इसलिए उसका इंटीग्रल 0. ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको. इंटीग्रल 0 जो मैंने शुरुआत बता दिया उसको प्रूव कर दिया यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के हिसाब से. अब हमारा क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू ये तो 0 आएगा, और इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा, 1 dt. 1 dt इज t. दिस इज नथिंग बट क्या आएगा ये, m omega square a square upon 4t, and this is 1 dt which is t, and t is going from 0 to capital T, and t gets cancelled. समझे? So what is the average value of kinetic energy over the complete cycle? 1 by 4 m omega square a square. Similarly इसका भी वही हो जाएगा. This is m omega square a square upon 4t, और ये 0 हो जाएगा. फिर ये आएगा 1 dt that is t, and t cancel. The answer here 1 by 4 m omega square a square. So दोनों का एवरेज वैल्यू सेम ही है, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, इट्स एवरेज वैल्यू is m 1 by 4 m omega square a square. So this is the answer. Is that clear to you all? And it's a star problem, not a star problem. Is this okay? ठीक है, अगला क्वेश्चन. I'll go for the next question now. Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. Simple harmonic oscillator has a period of t.
A simple harmonic oscillator. A simple harmonic oscillator has period t, energy E. The amplitude of the oscillator is doubled. देखिए उसका टाइम पीरियड इज t एंड ऑसिलेटर का टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी लिख सकते हैं पेंडुलम की बात करें तो, ठीक है ना, टाइम पीरियड। एंड एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड अगर उसका डबल किया है, ए डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, तो एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो इट विल बिकम ई डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई ना। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, टाइम पीरियड, देयर इज नो चेंज इन द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। सो व्हाट इज द आंसर हियर? एनर्जी इज 4 टाइम्स, पीरियड बिकम्स सेम, एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, डी इज द आंसर। इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। समझे? अगला क्वेश्चन। A particle executing simple harmonic motion with a period t time period with the time period with which its kinetic energy oscillates is, हाँ ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। They are asking what is the time period with which its potential kinetic energy oscillates. Hello, have we talked about this time period with which its kinetic energy oscillates? ये देखिए यहाँ पे मैंने बात की है उसके बारे में। We have talked about these graphs from, yeah, this one. टाइम पीरियड विद विच, देखिए ना यहाँ पर टाइम पीरियड है, पोटेंशियल एनर्जी उसका आप साइकिल इधर पूरा कर ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी t/2 में ही पूरा कर रहे हैं। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी, पीरियड इज t/2। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये मैंने देखा ना यहाँ पे टाइम पीरियड, ये वी हैव रिटन डाउन दिस थिंग हियर, यू सी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक्स वी ए, इनका टाइम पीरियड t होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनका टाइम पीरियड होता है t/2 and frequency is double, time period is half. Go back to the question now. क्या होगा इसका आंसर? दिस आंसर इज d t/2, करेक्ट ना। अगर चाहिए तो वो वाला पिक्चर यहाँ पे चिपका दूं, जरूरत नहीं है, चिपकाओ, टाइम जा रहा है। Take this, पूरा नहीं, मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो नहीं कर रहा हूँ, बस आई एम जस्ट, हाँ बस वो टेबल ये वाला, अच्छा जो मैंने लिखा है वो, ओके राइट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55। नहीं, यहां पर मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 57 और 58 पहले सॉल्व करें। कंसिडर दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, इससे रिलेटेड ही है वो। बताइए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी अगर n है, इट विल बी n to n, करेक्ट ना। तो द आंसर इज ए, अंडरस्टूड। अच्छा, फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसका डायग्राम रह गया, आई जस्ट टेक दैट डायग्राम। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए है उन्होंने, दो डायग्राम्स दिए हैं।
for the particle executing simple harmonic motion, displacement given by x is equal to a cos omega t. Identify the graph which represents the variation of potential energy as a function of time and as a function of displacement. हमने दोनों भी बात करी हुई है. Potential energy versus displacement. Have we talked about this? Potential energy is minimum here. तो ये इस टाइप का ग्राफ होता है, बराबर है क्या? ऐसा वाला ग्राफ होता है और ये ऐसा काइनेटिक एनर्जी होता है, करेक्ट ना? तो पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ है ये, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? और ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. और टाइम पीरियड की अगर बात करूं, अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड का कैसा होता है? टाइम पीरियड का ग्राफ हमने अभी अभी ऊपर देखा हुआ है. टाइम पीरियड का ग्राफ यहां पर देखा था. शैल आई पेस्ट दैट अगेन हियर? शैल आई पेस्ट दैट ग्राफ हियर? ये वाला ग्राफ, दिस इज द ग्राफ. पोटेंशियल एनर्जी वाला चाहिए उनको, ये रहा. समझे क्या? अब देखिए उन्होंने कौन सा ग्राफ बोला है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. और यहां पर उन्होंने x एज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t दिया है. x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t दिया है, whereas यहां पर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t दिया है. लेकिन फिर भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वैसे ही रहेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे होता है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर टाइम वाइज देखें तो इट विल बी, कैसे होगा वो ग्राफ? दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. अगर मीन पोजीशन पे है तो ये ग्राफ इस प्रकार है. इन्होंने यहां पर जो फंक्शन हमें दिया गया है, they have given here the function of what kind? x is equal to, please check here, इन्होंने दिया है x as a function of a cos of omega t in the question. You see x is equal to a cos omega t. समझ में आ रहा है क्या? तो x is equal to a cos omega t का इस तरह का अगर ग्राफ मुझे उसके लिए बनाना है तो वो कैसे बनेगा बताइए? हाउ इज दिस ग्राफ गोइंग टू बी? इस ग्राफ को अगर मुझे बनाना है तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा. देखिए वो ग्राफ इस प्रकार बनेगा, है ना? ठीक है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, करेक्ट? अच्छा, इसका वेलोसिटी एंड ऑल वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ग्राफ. ये ग्राफ दोनों के लिए हमने ऑलरेडी बना चुके हैं. अगर मुझे ये नीचे एक्सटेंड करना है एंड इफ आई वांट द ग्राफ नाउ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो ये ग्राफ किस प्रकार होंगे जी? ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ कैसे होंगे? अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये बराबर इसके उल्टा होगा. मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे. ये जीरो हो रहा है शुरुआत में, अगर डिस्प्लेसमेंट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, द पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सट्रीम पोजीशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा होता है. तो ये जो ग्राफ होगा ये इसके विपरीत होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा ये ग्राफ इससे. इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो हियर, लेकिन यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? और यहाँ पर एट द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल ये दोबारा मैक्सिमम पर चलेगा, लेकिन बाय द टाइम इट हैज कंप्लीटेड 2 वेरिएशंस. इसके 2 चीजें उसने पूरा कर दिया है. इट हैज कंप्लीटेड, सो द ग्राफ विल बी समव्हाट लाइक दिस. ये ऐसा आएगा, इधर ये एक साइकिल हो गया इन t1, और फिर दोबारा ये ऐसे जाएगा नीचे एंड इट विल कम लाइक दिस. दिस इज इन t. इज दैट क्लियर? दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है. प्लीज चेक दिस. x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t के लिए ऐसा होगा, और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा, द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो इसके जैसे होगा. समझे? सो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा? यहां पर ये मिनिमम पर होगा, इधर मैक्सिमम जाएगा एंड देन t/2 पर वो मिनिमम हो जाएगा.
सो दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर काइनेटिक एनर्जी, और फिर यहाँ पर और एक वो साइकिल पूरा करेगा, ऐसे आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये स्टार है, समझ में आ गया? यू हैव टू रिमेंबर, और दिस इज नॉट गिवन इन एचएससी, दिस इज देयर इन नीट, दिस इज देयर इन एनसीईआरटी एंड दिस इज देयर इन जेई। अपने सिलेबस में ये एचएससी में उन्होंने उड़ा दिया है। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये ग्राफ्स कुछ इस प्रकार होंगे। इज दैट क्लियर? समझे? तो अब मुझे ये बताइए कि यहां पर ये कौन से ग्राफ के साथ ये मैच कर रहा है, विद विच दे वांट द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। और छोटा इसको मैं कहता हूं, सो इट्स विच ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। देखिए यहां पर टाइम टी पूरा हो रहा है, सो आई थिंक इट इज ग्राफ नंबर 2 ना? इज दैट ग्राफ नंबर 2? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। और 1 वाला जो है वो कौन सा है? इट इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। दिस इज फॉर ए कॉस ओमेगा टी। अगर ए साइन ओमेगा टी होगा तो उसका पैटर्न अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हेलो, पता नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं? आंसर क्या होगा यहाँ पे? विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स दिस? सो इट इज ग्राफ, वी वांट पोटेंशियल एनर्जी, सो 2 and 3, it's 2 and 3 ना? It is 2 and 3. Potential energy versus time and displacement. Potential energy is 2 and potential energy is 3. So 2 and 3 it's B and it's a star या डबल स्टार या कुछ भी। इसके ऊपर और भी एक क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि उन्होंने यहाँ पर x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t दिया है, they can give it for x is equal to a sin omega t, and they'll ask you the same thing for potential energy versus डिस्प्लेसमेंट x एंड वर्सेस टाइम t। या फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड वर्सेस टाइम t। समझे क्या? यहां पर उन्होंने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम, काइनेटिक एनर्जी, ये उन्होंने ए कॉस ओमेगा टी के लिए पूछा है, वो ए साइन ओमेगा टी के लिए भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? So all these variations are possible here. It's a double star problem for sure. All right. समझ में आ गया सबको ये? चलिए अगला क्वेश्चन। The next question is not all questions are that difficult, but है कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। When the displacement of a particle executing SHM is 1/4 of its amplitude, displacement is a by 4, 1/4 of the amplitude. What fraction of the total energy is kinetic? Kinetic energy is upon total energy. What is this fraction? क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करने का है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड यू जस्ट हैव टू टेक द रेशियो ऑफ दीज टू। इन दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो तो क्या मिलेगा बताइए? दिस विल गिव मी ke अपॉन te is equal to half m omega square is going to get cancelled, so this is a square minus a by 4 का square is a square upon 16 divided by a square, so that will be 16 minus 1 is 15 a square upon 16 divided by a square, and therefore this is equal to 15 ke upon pe. Is this clear to you all? Any doubts about that? So the answer is B. बहुत सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन,
60th question. Question number 60th. A block whose mass is 1 kg is fastened to the spring. Can you read the question? A block whose mass is 1 kg is fastened to the spring. The spring has the spring constant of 1000 Newton per meter. Okay. The block is pulled to a distance of 10 centimeter. Okay. From its equilibrium position at x is equal to 0 on a frictionless surface from the rest at t is equal to 0. So x is equal to 10 centimeter at t is equal to 0. The kinetic energy and the potential energy of the block, they are asking what is Ke. So this is amplitude actually. ये amplitude दिया है. The kinetic energy and the potential energy of the block, they are asking when it is 5 centimeter away from the mean position at x is equal to 5 centimeter. They are asking. Is the question clear to you? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए अभी बात करते हैं m. यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m होता है. तो k इज इक्वल टू 100 and m is 1 and therefore omega is equal to 10. Now kinetic energy, potential energy फॉर्मूले है हाफ m omega square x square and this is half m omega square a square minus x square. तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. हाफ m is 1, omega square is 100, omega square is 100 and x square, x is 5 into 10 raised to minus 2 meter. सही है ना? So this will become 25 into 10 raised to minus 4. सही है कि नहीं है? So 25 upon 2 is 12.5 into 10 raised to minus 2. So 0.125 joule. Is this okay? 0.125 joule. ऐसे दो आंसर है. अब काइनेटिक एनर्जी भी करना पड़ेगा. So this is half m is 1, omega square is 100, a square, amplitude का square 10. This is 100 into 10 raised to minus 4 minus 25 into 10 raised to minus 4. तो उसमें से आएगा ये 10 raised to minus 4 बाहर आएगा. 10 raised to minus 4 plus 2 is minus 2. So 10 to minus 2 upon 2 into 75. So this is 37.5 into 10 raised to minus 2. Well, कुल मिलाकर क्या आएगा ये? That is equal to 0.375 joule. This is the kinetic energy. This is the potential energy. अब इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें ये आंसर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा. This is actually 0.375 joule और ऐसा करने के बाद A is the answer. समझ में आ गया? That is the print mistake. ठीक है. अगला क्वेश्चन. I think I'll stop here for physics. I'll have to switch over to maths.